प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते? मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था ना। प्यार करने की क्या ये सजा होती है? तो मुझे नहीं करना तुमसे ऐसा प्यार। प्लीज जंगल छोड़ दो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं बेबी डॉल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे डैड ने जो मेरे मॉम डैड के साथ किया ना, उसका सजा मैं तुम्हें दूंगा। उसका बदला मैं तुमसे लूंगा। इतना टॉर्चर करूंगा तुम्हें, इतना टॉर्चर करूंगा कि उससे भी तो पता चले अगर हम किसी के साथ विश्वासघात करते तो उसका दर्द कैसा होता है। तुम्हारे डैड ने जो मेरे मॉम डैड के साथ किया ना, मैं उसका सजा तुम्हें दूंगा। नहीं जंगल, तुम गलत समझ रहे हो मेरे मॉम डैड को। प्लीज एक बार तुम उनसे बात करके तो देखो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो जंगल, इस बात का तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। तुम प्लीज एक बार मेरे डैड से बात करके तो देखो। मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में रिग्रेट करो इन सब चीजों के लिए। इसलिए कह रही प्लीज जंगल, एक बार तुम मेरे मॉम डैड से बात करके तो देखो। चुप, बिल्कुल चुप। और जॉन जंगल किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करता, वो रिग्रेट करवाता है, जो मैं तुम्हारे डैड को करवाने वाला हूँ। और अब चुपचाप रहो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। नहीं प्लीज जंगल, ऐसा मत करो। छोड़ दो मुझे प्लीज जंगल। I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Glowing so bright, I'm going lower. I'm riding high and it's just closer. Loving what I do and I know nothing gets me down. 'Cause I can turn it round like, yeah, I'm feeling good and yeah, I'm feeling great. Every time I look around, it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. 'Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. I don't gotta run hard just to get far. 'Cause I work real hard but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Yeah, I'm feeling good and yeah, I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. 'Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. I don't gotta run hard just to get far. 'Cause I work real hard but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. Glowing so bright, I'm getting low when it hurts. Riding high and it's just closer. Loving what I do and I know nothing gets me down. 'Cause I can turn it round like, yeah, I'm feeling good and yeah, I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. 'Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. I don't gotta run hard just to get far. 'Cause I work real hard but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. बेबी डॉल, तुमने एंजॉय किया? मैंने तो बहुत एंजॉय किया। यू आर सो गुड। तुम बेड पर बहुत अच्छी हो। मुझे बहुत मजा आया। दूर हटो मुझसे जंगल, तुम एक घटिया इंसान हो। मुझे तुमसे घिन आ रही है और खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया और तुम बदले के आग में इतने गिर गए कि तुम्हें सही और गलत नजर नहीं आ रही है। इस बात के लिए तुम बहुत रिग्रेट करोगे जंगल। और उस वक्त तुम्हारे पास ना आंसू भी कम पड़ जाएंगे पछताने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे वॉइस रेज करो। और हाँ, ये एंगर मुझे मत दिखाना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और जाके जल्दी से फ्रेश होके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ और घर के सारे काम करके रखना, नहीं तो
घर भी क्लीन करके रखना। मैं जब ऑफिस आऊँ ना तो मुझे घर क्लीन मिलना चाहिए। अगर घर क्लीन नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्प हो सकती है। जो मैं तुम पे तरस खा रहा हूँ ना वो भी नहीं खाऊंगा। तो तुम अच्छे से सारा काम करना बेबी। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने और जिमिन बैठ के रोने लगती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि वो कैसे जंकुक से मिला। ओके आर्मी, तो चलो हम भी चलते हैं जिकुक के पास्ट में और देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि जंकुक जिमिन से इतना नफरत करता है और उसके डैड ने क्या किया है जो जंकुक उससे नफरत करता है। चलो आर्मी देखते हैं हम भी। दर्द हो रहा है भाई, कितना दर्द हो रहा है? जितना मुझे हुआ था उतना दर्द हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है? मुझे भी इतना ही दर्द हुआ था जब डैड ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी और मेरे नाम कुछ नहीं। मैं भीख मांगू और आप राज करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था मेरे भाई। हाँ तो मेरे भाई हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा ही दर्द दिया आपको। आप धीरे धीरे गॉड के पास चले जाओगे और डोंट वरी, थोड़ी देर बाद मैं आपके बेटे को भी आपके पास ही पहुंचा दूंगा और आपकी पूरी फैमिली गॉड के पास हैप्पी रहना। ओके, गुड बाय भाई एंड भाभी। ये है जॉन वोगम, जंकुक के अंकल। ये बहुत बुरे इंसान है। इसने बहुत ज्यादा लॉस्ट कर दिया था बिजनेस में। ये ड्रग्स स्मगलिंग करता था। जो इसे जंकुक के ग्रैंडपा को पता चला तो उसने इसे अपने जायदाद से हर चीज से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। जिसके बदले के इसे लगा कि सारी चीज उसके बड़े भाई की वजह से हुआ, इसलिए वो उससे नफरत करता था और उसे मारने की हमेशा प्लानिंग करता था। बोगम सर, आपने ये क्या किया? आपने अपने भाई और भाभी को मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया? आपने इन दोनों को क्यों मारा? सर प्लीज अपनी आंखें खोलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ और आपको कुछ नहीं होगा। आप आंखें खोलिए सर। ये है पार्क नामजून, जिमिन के फादर और जिन के हस्बैंड, और ये बहुत अच्छे हैं। इसने कभी भी किसी का कोई गलत फायदा नहीं उठाया, इसलिए जॉन फैमिली इस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और ये जॉन फैमिली के पर्सनल लॉयर है और ये बहुत अच्छे। और इसलिए जॉन फैमिली ने जंकुक और जिमिन की शादी बचपन में ही तय कर दी थी नामजून के बिहेवियर से। और इसलिए वो दोनों सोच रहे थे कि जब जंकुक और जिमिन बड़े हो जाएंगे तो उन दोनों की शादी करवा देंगे। और जंकुक और जिमिन भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जाओ यहाँ से, भाग जाओ नामजून और मेरे बेटे जंकुक को सेव करो, उसे सेव करो, जंकुक को, उसे बचाओ इस बगम से। जाओ नामजून, भाग जाओ यहाँ से और मेरे बेटे को बचाना और इसकी काली शराबी मेरे बेटे पे मत करने देना नामजून। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। नहीं सर, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। नामजून बात मानो और जाओ यहाँ से, इसका कोई भरोसा नहीं, ये मेरे जंकुक को मार देगा। जाओ और मेरे जंकुक को बचाओ, जाओ यहाँ से नामजून, तुझे मेरी कसम। ओके सर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं जंकू को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके सर। उसके बाद मिस्टर जॉन की डेथ हो जाती है और नामजून जाके जंकुक को ढूंढता है, पर जंकुक नामजून को कहीं नहीं मिलता क्योंकि वोगम ऑलरेडी जंकुक को पहले ही ले जा चुका था वहां से और नामजून उसे ढूंढता ही रह जाता है, बट जंकुक मिलता नहीं है। अंकल आप मुझे ऐसे क्यों ले आए घर से? मुझे मम डैड के पास जाना है। आप मुझे मेरे मम डैड के पास छोड़ के आप मुझे क्यों लाए मेरे घर से? मुझे मम डैड के पास जाना है। आप मुझे मम डैड के पास जाने दो अंकल। देखो जंकुक बेटा, उस नामजून ने तुम्हारे मम डैड को मार दिया और अब तुम्हें भी मार देगा। तुम मेरे साथ चलो नहीं तो तुम्हें मार देगा। और उस प्रॉपर्टी के लिए उसने तुम्हारे मम डैड को मार दिया। जब पता चला कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अब चलो तुम मेरे साथ, हम ऐसे यहाँ से चले जाएंगे और लंदन में रहेंगे। चलो जंकुक, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। आर्मी आप लोग इमेजिन कर लेना कि वोगम रो रहा है बिकॉज मेरे पास उसके रोने का कोई क्लिप्स नहीं है, तो इसलिए आप लोग इमेजिन कर लेना। ओके आर्मी? नहीं अंकल, आप झूठ बोले। नामजून अंकल ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मॉम डैड को कितना रिस्पेक्ट करते ना, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप झूठ बोले। आप मुझे चलो, मुझे नामजून अंकल के पास जाना है, उनसे पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हो और मुझे मोची से मिलना है, मुझे मोची से मिलना है। छोड़ो मुझे, आप मुझे
जब बाद में मुझे पता चला कि सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम उसने कर दिया, तो मैं मारने की तो सोच रहा था, बट मैं तुम्हें कठपुतली बनाऊंगा। जैसा मैं कहूंगा तुम मेरे इशारों पे नाचोगे और मेरे इशारों से चलोगे, और जैसे तुम 25 के होगे तुम्हें भी मार दूंगा, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके। फिलहाल तो तुम्हें अपने साथ ले जाना इम्पोर्टेंट है मुझे। चलो कुछ नहीं, तुम्हें तो ख्याल रखना होगा तुम्हारा। उसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा मेरे प्यारे भतीजे। देखो क्योंकि मुझे पता है कि तुम नामजुन पे बहुत भरोसा करते हो, और तुम्हारे डैड ने भी किया था, लेकिन उसने धोखा पाया। उसने उसके सीने पे खंजर भोंका और मुझसे कहा, बोगम तुम जाओ और मेरे बेटे को इस नामजुन से बचाओ, और तुम्हें मैं लेके कहीं दूर चला जाऊं जिससे नामजुन तुम तक पहुंच ना पाए। चलो कुकी, क्या तुम अपने डैड की बात नहीं मानोगे? तुम मेरे साथ चलो, और मुझे पता है नामजुन जल्दी आने वाला होगा और हमें पकड़ लेगा। हमें मार देने से पहले हमें जाना होगा कुकी, जल्दी चलो। ओके अंकल, चलिए। और मैं नामजुन को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसे उतना ही दर्द दूंगा जितना उसने मुझे और मेरे मॉम डैड को दिया। मैं भी उसे तड़पा के मारूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ मिस्टर नामजुन, पर मैं लौट के जरूर आऊंगा तुम्हारी लाइफ हेल करने। फाइनली मेरा काम हो गया, एक तीर से दो निशाने। मैंने अपने भाई को भी मार दिया और अपने प्यारे भतीजे को अपने बात में भी उलझा लिया। और नामजुन क्या ही कर लेगा, उसके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है जो पुलिस कंप्लेंट कर सके। ओहो क्या बात है, तूने तो बहुत मास्टर प्लान बनाया बोगम, यू आर वेल डन। चलो मेरे भतीजे, तुम्हारी लाइफ मैं अपने कंट्रोल से चलाऊंगा, तुम मेरे इशारों पे चलोगे। और नामजुन की रही बात, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। याद रखना मिस्टर नामजुन, मैं लौट के जरूर आऊंगा और तुम्हें भी उतना ही दर्द दूंगा जितना तुमने मुझे दिया। तुम्हारी बेटी को इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हें रिग्रेट होगा इस बात का। तुमने प्रॉपर्टी के लिए सारे काम किए ना, मेरे मॉम डैड को मार दिया। मैं भी तुम्हारी लाइफ हेल न कर दी, तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा न कर दिया, तो मेरा नाम भी जॉन जंगकुक ना। ये याद रखना मिस्टर नामजुन, मैं आऊंगा वापस और तुम्हारी बेटी को इतना दर्द दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आई एम सॉरी मोची बेबी, बट तुम्हारे डैड ने जो किया है ना, उसका सजा तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें मैं पनिश करूंगा इतना कि तुम्हारे डैड के रूह तक कांप उठेंगे कि उसने मेरे मॉम डैड को मारा क्यों। मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करने वाला हूँ माय मोची बेबी, उसके लिए सॉरी, बट तुम्हें टॉर्चर करूंगा तुम्हारे बाप की वजह से, जो उसने मेरे साथ किया। रेडी रहना माय